faith and repentance. आज हमने विश्वास और पश्चाताप के ऊपर सुना. Yesterday also we shared on the same topic. कल भी इसी विषय के ऊपर हम प्रचार कर रहे थे. So faith to me, as Jesus said, that I mean whenever you pray, you should believe that that can be done. तो जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास का मतलब ये है कि जब तुम एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो तुम्हें भरोसा रखना है कि हाँ फिर ये चीज़ होगा. And in my own life, I can speak from my own experiences. और मेरे खुद के जीवन में मेरे खुद के तजुर्बे से मैं ये बोल सकता हूँ. When I was new in Christ, जब मैं शुरुआत में आया था मसीह में, I mean I was told, I heard from other brothers that you should pray about everything. मैंने सुना था एक भाई से कि तुम्हें हर एक विषय के ऊपर प्रार्थना करना है. So I started praying. तो मैं प्रार्थना करने लगा. And I mean whatever small things I used to ask, I mean material things or any service or anything, it used to get answered. तो जो कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करता था, संसारी चीज़ों के लिए, सुविधाओं के लिए, तो उसका उत्तर मुझे मिलता था. So in the very beginning, I mean that is when I felt the power of God. तो शुरुआत में मैंने परमेश्वर की शक्ति को यही सब चीज़ों में अनुभव किया. And when I grew into the Lord, I understood. I started reading the Bible. I understood from other elder brothers more about Christ. और जैसे मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ने लगा और दूसरे जो बड़े भाई हैं उनसे मैं प्रभु यीशु के बारे में और सीखने लगा. So I learned about things like overcoming sin. तो मैंने सीखा कैसे पाप के ऊपर जय पाना है. And I used to pray about it, but I mean those prayers did not get answered very easily. तो मैं उनके बारे में भी प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो जो प्रार्थनाओं के उत्तर है इतने आसानी से आने नहीं लगे. I was wondering why is that so? और मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है. I mean I got the answer. और उसका उत्तर मुझे मिला. I mean if you ask for any service for yourself or any small material things, I mean it will be easily given to you. कि अगर तुम कोई संसारी चीज या सुविधा की मांग करोगे तो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा. Because sometimes we ask for those things with all our heart. क्योंकि कई बार हम लोग वो चीजों की खोज पूरे मन से करते हैं. Let's take an example. If you want a promotion or forget about promotion, if you don't have a job, you are asking for a job. या सोचो अगर तुम एक नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या नौकरी में प्रमोशन के लिए You प्रार्थना and कर me रहे हो. know that you'll ask with all your heart because your family expenses and everything depend on that. तो उस समय हम लोग पूरे मन से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा परिवार, हमारा जो खर्चा है उसके ऊपर निर्भर है. But maybe when we ask for overcoming sin or victory over certain sin, maybe somewhere deep down in our heart, we're not asking that with, asking that with whole of our heart. और लेकिन कई बार जब हम लोग पाप के विषय में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कोई पाप के ऊपर जय पाए, तो हो सकता है हमारे मन के भीतर हम लोग पूरे मन से उसकी खोज नहीं कर रहे हैं. And that is when we should listen to Jesus and put our entire faith on God and believe that it can be done. और इसलिए हमें प्रभु यीशु की बातों को सुनना है और अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पे डालना है कि ये जो चीज़ है वो मेरे जीवन में कर सकता है. And always should pray with all our heart. और हमेशा पूरे मन से प्रार्थना करना and है. not with a half heart. आधे मन से नहीं. And if you think, you should, you yourself should judge yourself. If you think if there is 1% of your flesh, asking for that not to be done, then you should repent for it and should ask God, God, I can't, I'm not getting 100% conviction, or I can't, or there's something in me which is longing towards that sin. So please help me in that. तो हमें खुद के ऊपर न्याय करना है प्रार्थना करते समय कि अगर मैं देखा कि मेरा जो शरीर है भले 1% भी वो पूरे मन से खोज नहीं कर रहा ये पाप के ऊपर जय पाने का, तो मुझे उस समय पश्चाताप करना है और बोलना है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, क्योंकि मैं अब भी ये चीज़ से प्रेम करता हूँ. So second thing is, I just happened to go through the book of Jeremiah. और दूसरी बात ये है, मैं यिर्मयाह के पुस्तक के द्वारा जरिए जा रहा था. Chapter 8. यिर्मयाह चैप्टर 8. And it was God's warning through Jeremiah. और यहाँ पे यिर्मयाह के जरिए परमेश्वर चेतावनी दे रहे थे. To Jerusalem. यरूशलेम को. To Judah को. And I'll not read the entire thing. पूरी चीज़ नहीं पढ़ूंगा. You can read the entire chapter when you have time. पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो. Go through some verses. In verse 4. वाक्य 4. The Lord is continuously reminding us to repent. तो यहाँ पे परमेश्वर बार-बार लगातार याद दिला रहा है कि हमें पश्चाताप करना है. In verse 4 it is written, do men fall and not get up? Does one turn away and not repent?
वाक्य 4 में लिखा है, तू उनसे यह भी कहे, यहोवा कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वे फिर उठते नहीं। Again in verse 6 he says, वाक्य 6 में फिर से कहते हैं, no man repented of his wickedness, कोई भी व्यक्ति ने अपने दुष्टता से मन नहीं फिराया है, saying, what have I done? और ये नहीं कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या चीज कर दिया है। So I mean, and it has been repeated often in this chapter itself. और ये चैप्टर में बार बार ये बात को दोहराया गया है। And then in verse 13 it says, और वाक्य 13 में लिखा है, I will surely snatch them away, मैं जरूर उनको छीन लूंगा। declares the Lord. There will be no grapes on the vine and no fig on the fig tree, and the leaf will wither. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यहोवा की सैबी वाणी है, मैं उन सबों को अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाखलता में दाग पाई जाएंगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। And this is something that God was saying to his own people, not the Canaanites or not the other non-believers. और ये जो सारी चेतावनियां हैं, ये परमेश्वर विदेशी लोगों को नहीं बोल रहे थे, लेकिन अपने लोगों को, यहूदियों को ही बोल रहे थे। And I think this applies today as well. If you don't repent, I mean, we know, I mean, repentance is not a matter of, it's not just one-time repentance, that once you repent, believe in Jesus and you will not sin anymore. That's not the certificate for that. तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारी बातें आज भी लागू होती हैं। हम सभी जानते हैं कि पश्चाताप बस एक समय की बात नहीं है कि मैंने एक समय बहुत साल पहले पश्चाताप किया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब मैं वापस कभी पाप नहीं करूँगा और मुझे फिर से पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। But you need to repent continuously. लेकिन हमें हमेशा बार बार पश्चाताप करना है। And in my own life, I think we should ask this question, which is there in verse 6. I mean, whenever you sin, you should have that craving. You should say, what have I done? और खुद के जीवन में भी मैंने ये अनुभव किया है कि जब कभी भी मैं पाप में गिरता हूँ या हम पाप में गिरते हैं, हमारे अंदर ये सवाल आना चाहिए कि मैंने क्या कर दिया है। And we should be ashamed of ourselves for that sin. और वो पाप की वजह से हमें शर्मिंदा होना है। In verse 12, the Lord says, they certainly were not ashamed. और वाक्य 12 में परमेश्वर कहते हैं कि ये जो लोग हैं, वो लोग बिल्कुल शर्मिंदा ना थे। So, and when I was thinking, how can I know that I'm going off track from the God's word? और मैं सोच रहा था कि कैसे मैं ये जान सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन से और उनके मार्ग से भटक रहा हूँ। And when I need to repent. और कभी मुझे पश्चाताप करना है। So I mean, for that you should judge yourself. I have to examine myself. तो उसके लिए मुझे खुद के ऊपर न्याय करना है, खुद को जांचना है। I need to see whether I have the joy and peace how it was when I accepted Christ. मुझे देखना है कि क्या वही आनंद और वही शांति मेरे जीवन में है जो शुरुआत में मेरे अंदर थी जब मैंने परमेश्वर को स्वीकारा था। And we can easily sin every day. और हम लोग कितने आसानी से हर रोज पाप में गिर सकते हैं। We can watch certain things that we should not watch. हम लोग ऐसे कई चीज देख सकते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। Someone spoke rudely to us and we have a grudge or anger inside our heart. कोई हमारी तरफ बदतमीजी से पेश आता है और हम अपने मन में उनकी ओर कड़वाहट या क्रोध रखते हैं। And before the day ends, we should forgive that person and repent that we had anger in our heart. तो इस समय इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि दिन खत्म होने के पहले हमें उस व्यक्ति को माफ करना है और हमारे मन से जो कुछ भी गुस्सा है उसे निकालना है। So these are the things, I mean, we should repent of, and other sins also, as we heard, anger, unforgiving spirit and all that. तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें हर रोज़ पश्चाताप करना है। जैसे दूसरे चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने सुना है, जैसे गुस्सा करना या माफ़ नहीं करना, वो सब चीज़ें। And this is what I was encouraged about. ये चीज़ से मुझे प्रोत्साहन मिला है।